Good morning, students. Once again, you are welcome to our new video. Chapter number 5, The Happy Prince, from your book Moments. Uh, Today, I will tell you the story of the Happy Prince in detail from your text. Open your book on page number 28. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? The The introduction to the chapter is the statue of the Happy Prince stood on a tall pillar high above the city. His body was gilded with thin layers of gold. उसका पूरा शरीर जो स्टैचू के अंदर जो हैप्पी प्रिंस का पूरा बॉडी सोने की पतली एक परत से बिल्कुल जो है परत चढ़ी हुई थी उसको. इन द आइज देयर वर 2 सैफायर्स, और आइज में 2 नीलमणि यानी कि नीलम एक तरह का प्रेशस स्टोन. देयर आर मैनी अदर प्रेशस स्टोन्स लाइक पुखराज, मानक, ओपल एंड सो ऑन. सो सैफायर्स इज ऑल्सो a precious stone that is very valuable. His sword was adorned with a large red ruby at its hilt. और उसकी जो sword थी वो भी जो है बड़े मतलब रूबी उसके अंदर जो है उसके एक सिरे पर रूबी का पत्थर जड़ा हुआ था और उससे वो की तलवार सजी हुई थी. High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had 2 bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. One night there flew over the city a little swallow. Little swallow. Swallow is the name of a bird. One night what happened? एक रात एक swallow नाम का की bird flew over the city, जो शहर में जो है उड़ रही थी. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. His friends, whose friends? Swallow, the bird, वो अबाबील पक्षी, उसके फ्रेंड्स के लिए आया कि वो इजिप्ट जा चुके थे 6 weeks before. इजिप्ट मीन्स मिस्र देश. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. देखिए उसने रात वो वहाँ पर रुक गया. रात होने लगी. उसने सोचा कि अब मैं कहाँ पर रुकूं, क्योंकि उसके मित्र वगैरह तो पहले ही चले गए थे. उसने कहा मैं सोचता हूँ कि नगर में यानी सिटी में तैयारियाँ की जा चुकी हैं. तब उसने ऊंचे स्तंभ, टॉल कॉलम मीन्स हाई पिलर पर उस मूर्ति को देखा. वहाँ पर वो हाई पिलर पर बैठा हुआ था. अब स्वैलो बर्ड, मैं वहाँ रहूँगा. ही क्राइड, उसने जोर से चिल्लाया और कहा.
It's a fine position with, with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. वो जगह बहुत उसको फ्रेश एयर वाली वो जगह उसको लगी इन द फीट ऑफ बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस अंडर द स्टैचू ऑफ दैट हैप्पी प्रिंस आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही सेड. उसने कहा एक तरह से ये मेरे लिए गोल्डन बेडरूम है. बिकॉज वाई? बिकॉज ही द स्टैचू वॉज मेड ऑफ गोल्ड लेयर. And softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. Now he prepared himself to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What happened? As soon as he put his beak under his wings to sleep, a large drop of water fell on him when he was sleeping under the statue. What a curious thing! Curious means what an interesting thing! He cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. It was there was no limit of his surprise. There was not a single cloud in the sky, and the stars were twinkling brightly, and all the sky was clear. But it was raining in his thought. Then another drop fell. One after another drops fell on him. What is the use of the statue if it cannot keep the rain off? यानी जो है कि तब उसने भी जो है उसने कहा इस मूर्ति से क्या लाभ, क्या फ़ायदा अगर यह बारिश को नहीं रोक सकती. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. अब मुझे एक अच्छी कोई चिमनी पॉट मुझे देखना पड़ेगा. यानी कि वो उस पुराने ज़माने में फैक्ट्री और मिल्स होती थी, उनमें बाहर की तरफ ऊपर की साइड में स्मोक को पास आउट करने के लिए चिमनी लगी रहती थी ऊंची ऊंची. तो वो सोच रहा है, वो बर्ड सोच रहा है कि वो वहाँ पर जाके रुकेगा. और उसने फिर he decided to fly. But before he had opened his wings, जब उड़ने के लिए उसने अपने पंख खोले उसके पहले a third drop fell and he looked up and saw. What did he see? It is for his surprise that he looked there a different and strange thing. The eyes of the happy prince were filled with tears. Those drops were not coming from any rain, but the drops of tears which were coming from out of the eyes of the happy prince, जिसके स्टैचू के नीचे वो रेस्ट कर रहा था. The tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. मतलब अब ये क्लियर हो गया कि वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर नहीं थे, बल्कि वो आंसू थे जो उस प्रिंस की स्टैचू में से उसके आँखों से निकल रहे थे और उसके गोल्डन कलर के चमकीले गालों से वो बह रहे थे. और वो कह रहे कि कौन हो तुम? आई एम द प्रिंस, आई एम द हैप्पी प्रिंस. वाई आर यू वीपिंग देन? आस्क द swallow. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? तुमने तो पूरा मुझे भिगो दिया. व्हेन आई वॉज अलाइव
Now Happy Prince starts his story. When I was alive and had a human heart, answered the statue. स्टैचू ने आंसर दिया कि जब मैं जिंदा था, एक मेरे अंदर एक आदमी का दिल धड़कता था, मानव का. आई डिड नॉट नो वॉट टेयर्स वर. मुझे मालूम भी नहीं था कि आंसू क्या चीज़ होते हैं. फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं पैलेस में, महल में रहता था जहाँ पे राजाओं को रखा जाता है, और वो प्रिंस था. आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर. वो एक ऐसा महल जहाँ पे दुख को आने की अनुमति नहीं थी. माई courtiers called me the happy prince. My courtiers and my fellows called me the happy prince, and happy indeed I was. Of course I was happy. That's why they called me happy prince. So I lived and so I died, and now I am dead. They have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. और अब मैं मर गया हूँ और मुझे स्टैचू के रूप में यहाँ पर खड़ा कर दिया है, और अब मैं यहाँ से मेरे शहर की दुख भरी कहानियों को और शहर की बदसूरती भद्देपन को मैं देख सकता हूँ. और हालांकि मेरा हृदय, मेरा दिल शीशे का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, बिकॉज इट वॉज अ स्टैचू मेड ऑफ मेटल एंड सैंड, है ना. तो क्ले और मेटल की बनी हुई स्टैचू में मेरा हार्ट भी लेड का है, यानी कि शीशे का बना हुआ है. लेकिन मैंने रोने को चुना, क्योंकि वो वहाँ से खड़े होके पूरे अपनी हाइट पर से पूरे शहर की मिजरीज को वो आराम से देख रही थी स्टैचू. वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ. स्वैलो को समझ में नहीं आया, उसने सोचा कि ये शायद पक्का मजबूत गोल्ड नहीं है. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स. वो इतना पोलाइट और जेंटल था कि वो पर्सनल रिमार्क कुछ भी नहीं कर सका. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू, फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन द लो म्यूजिकल वॉइस. स्टैचू ने एक धीमी म्यूजिकल वॉइस में कहना जारी रखा. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस. दूर एक छोटी सी पतली सी गली में एक टूटा फूटा सा मकान है. वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल. नाउ द स्टैचू इज़ डिस्क्राइबिंग व्हाट इट इज़ सीइंग फ्रॉम द पिलर, फ्रॉम द हाइट. कि एक दूर एक गली के अंदर एक मकान टूटा फूटा सा उसको दिखता है, और वहाँ एक औरत, एक गरीब औरत वहाँ बैठी है एक टेबल पे. हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न. उसका चेहरा पतला और मुरझाया हुआ था. एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स. उसके खुरदुरे लाल लाल हाथ हैं. ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल. और वो हाथ जो है सुइयों से होने के बाद उनमें छेद हो रखे थे. एंड फॉर शी इज़ सीमस्ट्रेस. ये देखिएगा, सीमस्ट्रेस मीन्स लेडी टेलर. वो एक सीमस्ट्रेस थी, लेडी टेलर थी, जो रात दिन कपड़े सिल के अपना गुजारा करती होगी. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maidens of honor. वो क्या कर रही थी कि क्वीन के लिए रानी की जो सर्वेंट्स होती हैं
जो उसके सम्मान में हर समय खड़ी रहती हैं क्वीन के पास, उसकी सखियाँ, उसकी सर्वेंट्स, उनके लिए वो सैटिन का गाउन, सैटिन के बहुत ही सुंदर गाउन सिल रही थी। वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल इन द बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। अब वो ये भी बता रहा है कि उस कमरे में जहाँ वो बैठी है उसके एक तरफ एक बिस्तर पे उसका बीमार बेटा, बीमार लड़का उसका पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। वो अपनी माँ से ऑरेंजेस मांगता है, उसको फीवर हो रहा है बहुत तेज़, भूख लग रही, और ऑरेंजेस मांगता है, बट उसके पास सिर्फ नदी के पानी के अलावा और कुछ नहीं उसको देने के लिए। सो ही इज़ क्राइंग, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ट। तो वो आवाज़ आती है कि स्वैलो स्वैलो, क्या तुम मेरे उस सोड, उस तलवार में जो रूबी जड़ा हुआ है, प्रेशियस स्टोन, उसको निकाल कर उसके पास नहीं ले जा सकते हो। माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। और मेरे जो पैर हैं वो इस पेडेस्टल यानी कि स्टैंड के अंदर लगे हुए हैं, मैं चल नहीं सकता हूँ। इस तरह से वो रूबी एक प्रेशियस स्टोन को उसको देख कर के उस लेडी को, गरीब औरत को और उसके बच्चे को वो मदद करना चाहती है, लेकिन वो अभी स्टैचू के रूप में वहाँ पर बंधा हुआ है वो प्रिंस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड आई विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you and have a nice day. Stay safe, stay home.